So radioactive series we are going to discuss in this lecture. So when a radioactive nucleus, it decays into another, it decays into another and decays into another what? Another nucleus, decays into another nucleus, and when the resulting daughter nucleus when the resulting daughter nucleus is also unstable. अगर unstable होगा तो क्या होगा? It will again decay, right? तो क्या होगा? It will again decay into another. So it subsequently decays to another sub daughter nuclei. So nucleus से daughter से sub daughter nuclei. Nucleus कह रहे हो, sub daughter nucleus. And this process will continue. And this process will continue, or this process continues until we obtain a stable nucleus. So until a stable end product, until a stable end product appears. Okay. So let us say we have the first nucleus. It decays with a decay constant lambda 1, we get A2. It decays with a decay constant lambda 2, we get A3. This decays with a lambda 3 decay constant, we get A4. And so on, we keep on getting this, right, till we get AN, the stable product. So that is lambda n minus 1. Now this is what, this is a stable product. So once we get the stable product, then there is no more radioactivity. Then there is no more daughter nucleus, no more radiations. So this, A1, A2, this is called as A1 say A2, A2 say A3, A3 say A4, and dot 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 say A. And this is called as radioactive series. This is called as radioactive series. And generally you will find one thing, that lambda 1 is greater than lambda 2 is greater than lambda 3. You'll find this. Why? Because here you have more number of undecayed nucleus. Generally this will happen. The decay constant lambda 1 will be more than lambda 2 and so on. Okay, so now we'll discuss that with the different radioactive series. So there are basically 4 radioactive series which have been discovered. So we'll talk about that. Okay. So let us talk about the 4 radioactive series. So there are 4 radioactive series that has been discovered till now. Okay. So we'll discuss one by one all this. So let us start with the first one. So there are 4 radioactive series that have been discovered. So
The names are given like this. Now I'll just tell you. With the mass number is called as 4n series. The first one. The name of the series is thorium. Now what is 4n? 4n means basically its mass number is divisible by 4. The mass number is a multiple of 4, integral multiple of 4. So जो थोरियम है, थोरियम का मास नंबर जो है वो 232 है, and you can see that 232 is divisible by 4, right? 4 5s are 20 and 4 8s are 32. So 232 is 4 into 58. That's 4n. So this is called as a 4n series. Okay. So the parent nucleus is thorium in this case, and the half-life is, so these have all been discovered, and thorium is a natural radioactive substance. It is found in nature. Okay. Okay, this is not made in the lab. ये lab में नहीं बनाया गया. This is already in the nature. Stable end product क्या है? The stable end product in this case is plumbum. Okay, plumbum इसका mass number है 208, atomic number है 82. Okay, so we will discuss actually how many alpha and beta particles, यहाँ से कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे तो थोरियम से प्लम्बम बनेगा. We will discuss that later. Then our next series is 4n plus 1, जिसका नाम है नेपच्यूनियम, और ये लैब में डिस्कवर किया गया. ये जो नेपच्यूनियम है, दिस हैज बीन डिस्कवर्ड इन लैब. This is not found in nature because this is not that stable. इसका लाइफ इतना लंबा नहीं है. It does not have a proper lifetime. It is a very small lifetime. इसलिए this is not found naturally. So this has been discovered in the lab. तो इसके लिए हमारे पास है नेपच्यूनियम, और ये है 237 और ये 93. ये इसका पैरेंट न्यूक्लियर हो गया. ठीक है, और इसका जो हाफ लाइफ है, तो आपको ये याद नहीं करना है हाफ लाइफ, ये जस्ट मैं बता दे रहा हूँ आपको. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका हाफ लाइफ बहुत छोटा है ना. तो इसी से आपको समझ में आ सकता है कि इसका जो लाइफ है वो बहुत छोटा है. ओके, और ये जो है यहाँ पे ये है बिस्मथ. इससे बिस्मथ बनता है स्टेबल प्रोडक्ट 20983. हाँ, ये पूछ सकता है आपसे कि विच इज द स्टेबल प्रोडक्ट इन थोरियम सीरीज. तो प्लम्बम इज द स्टेबल प्रोडक्ट. नेपच्यूनियम सीरीज व्हाट इज स्टेबल प्रोडक्ट इज बिस्मथ. दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं 4n+2 सीरीज. उसमें होता है यूरेनियम. यूरेनियम जो है वो तो यूरेनियम सीरीज बोलते हैं, और यूरेनियम जो है वही पैरेंट एटम है यहाँ पे. तो यूरेनियम 238. हालांकि यूरेनियम के और भी आइसोटोप्स होते हैं 235, और इसका जो हाफ लाइफ है वो है 4.51 × 10⁻⁹. और इसमें जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो भी प्लम्बम है, लेकिन प्लम्बम 206 बनता है. क्या बनता है? प्लम्बम 206. ठीक है, तो यहाँ बनता है प्लम्बम 206 और ये है 82. और लास्ट है अपना 4n+3. तो ये है एक्टिनियम. इसको एक्टिनियम सीरीज कहते हैं. तो ये है अपना यूरेनियम 23592. ठीक है, इसमें यूरेनियम का आइसोटोप यूज होता है, और इसका जो हाफ लाइफ है वो है 7.07 × 10⁸. ये इसका हाफ लाइफ सेकेंड्स में सारा हाफ लाइफ. और इसमें भी प्लम्बम बनता है, लेकिन प्लम्बम 207 बनता है. ठीक है, तो ये चार जो है रेडियो एक्टिव सीरीज है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि these four radioactive series have their mass or have their elements with their mass numbers. उनके जो mass numbers हैं, they are in the form of 4n, 4n+1, 4n+2, and the last one is 4n+3.
ओके, तो इस तरह से ये 4 सीरीज है जिसमें 3 नेचुरल है, सिर्फ ये वाला जो है ये आर्टिफिशियल है, दिस वन इज आर्टिफिशियल। ओके, तो बाकी जो सब है वो नेचुरली मतलब नेचर में मिल जाता है। ये क्या है, ये आर्टिफिशियल, इसको लैब में तैयार करना पड़ता है। और बाकी ये जो आप देख रहे हो तीनों, दे आर नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और वो नेचर में ही हमें ये पूरा सीरीज मिल जाता है। ठीक है, ओके, सो प्लीज नोट डाउन एवरीवन। Okay, students, so now we are going to discuss the next topic that is called as radioactive equilibrium, and that is a very important topic. Okay, so we are going to discuss now radioactive equilibrium. Okay, okay, so let us discuss this. What is radioactive equilibrium? Okay, so let us take one radioactive series here. So in a radioactive series, right? Now let us say A1 से A2 बन रहा है और A2 से A3 बन रहा है एंड सो ऑन, ये चल रहा है आपका। ठीक है, एक स्टेबल प्रोडक्ट आने तक। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले A2 के बारे में। ठीक है, A2, तो A2 बना कैसे? तो A1 disintegrates, A1 disintegrates to produce A2, A1 disintegrates to produce A2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डीके कांस्टेंट है वो लैम्डा 1। तो व्हाट इज द प्रोडक्शन रेट ऑफ A2? तो इसका जो डीके होगा यानी dN/dt इसका जो होगा यानी लैम्डा 1 N1। तो हमने N1 क्या लिया है? N1 इज द नंबर ऑफ undecayed nuclei of A1, nuclei of A1। So A1 disintegrates to A2। So what is the production rate? So what is the production rate of A2? So the production rate of A2 कितना होगा? वो होगा डीके रेट ऑफ N1, that will be equal to decay rate of N1। Yes or no? And that will be lambda 1 N1। So this is the production rate of A2। बात कर रहे हैं A2 का प्रोडक्शन और A2 का डीके। जब A2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन और A2 का रेट ऑफ डीके बराबर हो जाएगा तो A2 क्या हो जाएगा? The number of A2 will become constant, the number of A2 nuclei will remain constant, मतलब A2 will be in equilibrium। हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ A2 के बारे में। तो A2 का प्रोडक्शन किससे हो रहा है? A1 से हो रहा है। तो जब A1 डीके हो रहा है इस रेट से तो A2 बन रहा है, लेकिन A2 भी तो डीके हो रहा है, डीके हो गया A3 बन रहा है। ठीक है, ओके, तो व्हाट इज द डीके नाउ? A2 disintegrates to produce A3। So what is the decay rate of A2? What is the decay rate of A2? कितना है? That is lambda 2 N2, that will be lambda 2 N2। तो ये जो A2 है, A2 इक्विलिब्रियम में कब होगा? द नंबर ऑफ A2, जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है A2 के, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A2 वो कांस्टेंट कब होंगे? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है A2 के वो कांस्टेंट कब होंगे? जब A2 का बनना, जब प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 और जब डीके रेट ऑफ A2 बराबर हो जाए। समझ में आ रहा आपको? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि एलिमेंट A2 विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये समझिए आप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलिमेंट A2 विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम when its rate of production यानी lambda 1 N1 will be equal to its rate of decay यानी lambda 2 N2। So this is the condition for A2 to be in equilibrium। ठीक है, समझ में आपको? What is lambda 1 N1? Lambda 1 N1 is the production rate of A2।
So when this rate of production will become equal to rate of decay and lambda 2 n2 is the decay rate of A2, तब A2 क्या हो जाएगा, A2 इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ A2 जो बन रहा है और नंबर ऑफ A2 जो डीके हो रहे हैं वो सेम हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। सर यस टेल मी। एक और बार समझाओ ना फिर से सर। हाँ यस, देखिए सब लोग देखिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि A1 से A2 बन रहा है और A2 से A3 बन रहा है। तो ये A2 इक्विलिब्रियम में कब होगा? तो ये A2 इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A2 will be equal to what? रेट ऑफ डीके ऑफ A2, यानी जिस रेट से A2 बनेगा अगर उसी रेट से A2 खर्च होगा तो A2 कांस्टेंट हो जाएगा, यानी A2 विल बी इन इक्विलिब्रियम, A2 विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, अब सवाल ये कि A2 बनेगा किससे? A2 बनेगा A1 से, यस और नो? देखो, तो A2 का जो टोटल नंबर है वो N1 है एट एनी इंस्टेंट, और जो डीके रेट है वो λ1 है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A2 जो है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ A1, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ A1। ये समझ में आया आपको? जिस रेट से A1 डीके होगा उस रेट से A2 बनेगा, क्योंकि A1 डीके होता है तो A2 बनता है। ये बात समझ में आई? हाँ यस सर। सर। हाँ, अब रेट ऑफ डीके ऑफ A1 मतलब क्या है? वो है dN1/dt, मतलब वो है λ1 N1। ये बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ, तो दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A2। ये हो गया LHS। क्लियर है? हाँ सर समझा। क्योंकि जिस रेट से A1 डीके होगा ना उसी रेट से A2 प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? यस सर। अब A2 से यस A3 सर। बन रहा है, A2 से A3 बन रहा है। अगर A2 का नंबर N2 है और डीके λ2 है तो A2 का डीके रेट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा dN2/dt, तो वो हो जाएगा λ2N2। ठीक है? ओके। यस सर थैंक यू। हाँ, अब इनिशियली क्या था? इनिशियली N1 ज्यादा है तो इनिशियली डीके रेट ज्यादा है, यानी A2 का प्रोडक्शन जो है वो रेट ज्यादा है इनिशियली, तो इसलिए A2 का नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट समझो आप लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियली तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इनिशियली N1 इज फार ग्रेटर, क्योंकि अभी तो A2 बनना शुरू हुआ है, तो N1 is far greater. If N1 is far greater, then λ1 into N1 is far greater than λ2 N2. Yes or no? यस यस सर। सर। इसका मतलब इनिशियली जो रेट है A2 के बनने का वो ज्यादा है, so the rate of production is greater. The rate of production is greater. अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब N2 का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यस और नो? यस यस सर। सर। हाँ, तो N2 यानी ये बढ़ता जाएगा N2, A2 का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लेकिन धीरे 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 N2 भी तो बढ़ रहा है, तो N2 बढ़ रहा है तो उसका डीके भी बढ़ रहा है, तो इधर से प्रोडक्शन इधर से डीके। ठीक है, तो इधर से प्रोडक्शन इधर से डीके। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बट स्लोली, तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। बट स्लोली व्हाट हैपेंस? बट स्लोली N2 increases, so
its decay rate also increases. तो उसका जो डीके रेट है वो भी बढ़ जाता है, इट्स डीके रेट यानी लैम्डा टू एन टू वो भी बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, फिर ऐसा होता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स प्रोडक्शन बिकम इक्वल टू इट्स डीके, ठीक है, बट लेटर व्हाट हैपेंस, लेटर इट्स प्रोडक्शन यानी लैम्डा वन एन वन एंड इट्स डीके यानी लैम्डा टू एन टू दे बिकम इक्वल. So what happens now? So now N2 becomes constant because वो जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही डीके हो रहा है. So now what happens? So now N2 becomes constant, or we can say कि now N2 is in equilibrium. Now N2 या फिर ऐसा कह लो A2 क्योंकि प्रोडक्ट तो A2 है तो A2 is in equilibrium. A2 is in equilibrium. जो प्रोडक्ट है वो तो A2 है, तब A2 जो है इक्विलिब्रियम. अब आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? यस सर. ठीक है, तो